وہ چاہے ہم اور آپ کو توجہ کریں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت یہی کرتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یعنی نیت میں ہم کہتے ہیں تو میرا طرف کعبہ شریف کے آئیں آپ ایک سیکنڈ کا وقت نکالیں، ہم خانہ کعبہ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، اس کا جواب لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ تیرے حتیم کو سلام، اے خانہ کعبہ تیرے در و دیوار کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری عزت کو سلام، اے خانہ کعبہ تیری حرمت کو سلام۔ پوری دنیا کا مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نیت یہی کرتا ہے تو میرا طرف کعبہ شریف کے اے خانہ کعبہ ہمیں یہ جواب دے دے کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کی طرف تو جھکتا ہو، کیا کوئی ایسی ذات ہے جس کا تو سجدہ کرتا ہو؟ تو خانہ کعبہ جواب دیتا ہے سنو پوری دنیا کے مسلمان میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہوں تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ امت کا غمخوار ہے۔ میرا امام کہتا ہے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ کس نبی کی بارگاہ میں توجہ ہے؟ جن کی بارگاہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو جتنی دشائیں ہیں اللہ کے نبی شمال و جنوب مشرق و مغرب جسے ہم اپنی زبان میں ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہتے ہیں جسے ہم اتر دکن پورب پشچم کہتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ جتنی دشائیں ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، یہ جتنے عالم ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، میں نے کائنات کے ہر ذرے کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ حضور عالم کا چکر لگانے کے بعد اور کائنات کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت آپ سے پہلے نہ اللہ نے کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک خدا کسی کو بنائے گا، آپ سے زیادہ خوبصورت آپ سے پہلے نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس حدیث کی ترجمانی جب میرے شیخ طریقت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے جبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب محبت سے آئے جسے اپنے نبی سے جتنی محبت ہو محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند مل کر کے پڑھے درود شریف کا نظارہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم بڑا خوبصورت آج کا یہ جلسہ ہے، لائی کے مبارکباد ہے کہ گریان پوروا کے رہنے والے تمام مسلمان کمیٹی کے تمام افراد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کی محنت کو سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ جمع کثیر ہے آپ لوگوں کا، کافی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ چینل والے جتنے حضرات ہیں میں آگے بڑھنے سے پہلے ان سے ایک گزارش کرتا ہوں ذرا آپ توجہ میری طرف کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، پہلے میں 2-4 منٹ آپ سے باتیں کر لوں اور اس کے بعد مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بھی انسان ہیں، اگر بتقاضۂ بشریت ہم لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرے تو پہلے آپ اس غلطی کو شائع نہ کیا کریں۔ یہ علماء کرام گواہ ہیں بھی 24 تاریخ بہت بڑا جلسہ ہوا سالارپور میں، مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، وہاں ایک خطیب صاحب مولانا نعیم الدین جو منظر اسلام میں متعلم ہیں، منظر اسلام میں پڑھ رہے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے، ان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے انہوں نے جان بوجھ کر کے وہ الفاظ نہیں ادا کیے، ان کی زبان سے نکل گئے، سبقت لسانی تھی جس پر علماء نے اسٹیج پر گرفت کر لی۔ مفتی حماد صاحب قبلہ نے انہیں یاد دلایا اور ان سے کہا آپ اس جملے پر توبہ کر لیجئے، انہوں نے توبہ بھی کی، رجوع بھی کیا، لیکن میں نے دوسرے ہی دن سے دیکھنا شروع کیا کہ چینل والوں نے پہلے جلسے کو نہیں ڈالا، اس میں کیا پیغام دیا گیا وہ نہیں ڈالا، ان سے غلطی کیا ہوئی وہی تھمبنیل لے لے کر کے جلسے والوں نے ڈال دیا کہ آخر اس نوجوان خطیب نے کیا کہہ دیا کہ اس پر علماء نے ان سے توبہ کر آخر کیا کہہ دیا کہ ان کو اسٹیج پر توبہ کرنی پڑی۔ یاد رکھے بتقاضۂ بشریت اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے آپ یوں اجاگر نہ کیا کریں، پہلی بات تو انہوں نے توبہ کر لی تھی اور حضور فرماتے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو آپ اچھی باتیں ریکارڈ کریں، انہیں نشر کریں، اگر کوئی کسی سے کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو آپ بھی اپنے اسے چھپا لیا کریں، اگر آپ محبت سے بولتے میں چل کر کے سبحان اللہ
अल्लाह। जितने लोग आखिर तक बैठे हैं हाथों को उठा के पुकारे या रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखें कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कहें, अपनी नेकियों में इजाफा भी करें। और आप यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नेकियों में इजाफा करके जाएंगे। आप अपने नामे आमाल में नेकियों का अंबार लेकर के जाएंगे। जरा तवज्जो करें, हम और आप महफिल मिलाद मुस्तफा में बैठे हैं। इमाम हक वक्त से तहरीर फरमाते हैं कि जहाँ हुजूर का मीलाद मनाया जाता है अल्लाह उस जगह से आजाद को उठा लेता है। जरा बोले मोहब्बत से, जहाँ मीलाद मनाया जाता है किसका? हुजूर का, अल्लाह वहाँ से आजाद को उठा लेता है। आगे आप फरमाते हैं जिस बस्ती में, जिस इलाके में हुजूर का मीलाद मना लिया जाए पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवार और तजल्लियात की बरसात फरमाता है। और आगे इमाम हक वक्त से तहरीर लिखते हैं, लोगों सुनो, हुजूर का मीलाद वो है कि एक मर्तबे तो आकर के हुजूर के मीलाद में बैठ जाए पूरा साल अल्लाह उसकी उम्र में और उसके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता करते हैं। देखिए आप बैठे हैं, आपकी उम्र में भी बरकतें होंगी, रिस्क में भी बरकतें होंगी और आपके नामे आमाल में भी नेकियों का इजाफा होगा। जरा आप मुझे बताएं, हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना? बोले जरा मौका चल करके बोले आप और कहें यकीनन हम और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और हुजूर से मोहब्बत ये फर्ज ऐन है, ईमान की जान है, इसलिए कि हुजूर हमारी जान है। जरा तवज्जो कर लें आप, आज दुनिया चाहे जो कुछ कोई कहे, चाहे जितनी पाबंदियां लगाए, कि तुम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार ना करो, तुम अपने नबी से अकीदत का इजहार ना करो, तो चाहे जितनी पाबंदियां लगाए कि तुम ये ना कहो कि तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अपने आका से प्यार करते हो। जरा आप तवज्जो करें, आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी आप देख लें बिल्कुल माजी करीब में यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक शोर बरपा हुआ था कि अगर कोई कह दे आई लव मोहम्मद, अगर कोई कह दे कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं, हथकड़ियां लगा दी जाए। अगर कोई कह दे हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाए। जब ये बात सामने आई पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये कहा था, सुनो तुम हमारे बाप के बारे में बातें करो हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम हमारे खानदान के बारे में बात करो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हुजूर की बात आ जाएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे और यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का वो हो कलम तेरे हैं। और कहेंगे दुनिया वालों, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अपने नबी से कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और क़यामत तक प्यार करते रहेंगे। और यही कहेंगे मोहम्मद की मोहब्बत पीर हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहेंगे दुनिया वालों सुनो, तो चांद मांगोगे तो चांद देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं और मर के कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मोहब्बत करते हैं ना हुजूर से, तो बोले मचल करके सुभान अल्लाह। हुजूर यकीनन हमारे और आपके दिलों में है और कितनी मोहब्बत हम करते हैं कि हमें किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। आप उलमा के करीब हो जाएं तो उलमा आपको बताएंगे और हुजूर ने खुद बताया है कि हम और आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक हदीस मुस्तफ़ा में आपके सामने पढ़ता हो, जरा सारे लोग मिल करके मेरे साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा मिल करके बोले या रसूल अल्लाह, पुकारे हुजूर को या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब सुने आप हुजूर से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। देखिए सहाबा कराम का मजमा है, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जरा ये बताओ कौन है ऐसा जिनके ईमान पे तुम्हें ताज्जुब होता है, कौन है ऐसा जिनके ईमान को देख के तुम्हें ताज्जुब हो। सहाबा करते हैं ऐ अल्लाह के नबी, अंबिया का ईमान ऐसा है, नबियों का ईमान ऐसा है जिस पर हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते अंबिया के ईमान पे कैसा ताज्जुब, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया है, अल्लाह ने उन्हें वही दी है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, साहिब किताब बनाया है, उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है जिस पे ताज्जुब किया जाए। तो हुजूर ने फरमाया सुनो तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब, तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, और रात तुम मेरे रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते हो, आखिर तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब। सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर बताएं
है कौन है ऐसा जिसके ईमान पे हम ताज्जुब करें। अब एक शख्स भी खामोश नहीं बैठना चाहिए और इस बात पर मजमे से नारा लगना चाहिए। हुजूर ने फरमाया था सुनो सहाबा, कौन है ऐसा जिसके ईमान पे तुम ताज्जुब करोगे तो सुनो, मेरे बाद जो मुसलमान आएंगे, जो मेरी उम्मत आएगी, जो मेरा कलमा पढ़ने वाले आएंगे, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन उनका ईमान ऐसा होगा कि अगर मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। तवज्जो है आपकी। हुजूर ने क्या फरमाया था, सुनो मेरे सहाबा, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे सामने जी जी जब आवाम से नारा लगाएं लोग तो आप खामोश हो जाएं। आज इनका हक है ये नारा लगाएंगे, जब ये नहीं बोलेंगे तब आप बोलना। आप फिलहाल मैम को रख दीजिए, जब नारा लगाने की बात आए आप इनके हवाले कर दीजिए। देखें बड़ा जज्बा है, अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। इसी तरह आप नारा लगाते रहें, इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। अब सुने जरा, देखें आज हम और आप हुजूर का मीलाद मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मेरी गुफ्तगू को सुन ले आप, और दो चार काम की बातें हैं और पैगाम की बातें हैं, वो मैं आपको दे करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब क़िबला को समाअत करना है, और सैयद साहब क़िबला को भी हमें और आपको मोहब्बत से सुनना है। जरा तवज्जो करें, आज हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, हुजूर का मीलाद मनाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जिनका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से नहीं है, वो हमसे पूछते हैं व्हाई यू सेलिब्रेट बर्थडे योर होली प्रॉफिट। वो कहते हैं ये बताओ तुम अपने पैगंबर आजम का, तुम अपने आका का, तुम अपने नबी का ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो? व्हाट ही क्यों आप तवल, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है? हम उनसे कहते हैं ये बताओ, हम तो हुजूर का मीलाद मनाते हैं, तुम क्या मनाते हो? तो वो कहते हैं साल में एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन हम मदर्स डे मनाते हैं, अपनी माँ का दिन मनाते हैं, माँ को याद करते। तवज्जो करें, आज साल में एक दिन आता है जिस दिन लोग स्टेटस लगा के कहते हैं कि अम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ, लोग कहते हैं मेरी माँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मखसूस करके उनकी तस्वीर को स्टेटस पर डाल करके कहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, उसी को दुनिया में कहा जाता है मदर्स डे। तो लोग कहते हैं हम अपनी माँ का दिन मनाते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। माँ की अकीदत में एक दिन हमने खास कर लिया है जिस दिन माँ को मोहब्बत से देखते हैं, जिस दिन माँ पर मोहब्बत निछावर करते हैं। अब जरा तवज्जो कर ले, आज दुनिया मदर्स डे मना रही है, लेकिन माँ की अजमत अगर कायनात में किसी जात ने सबसे पहले बताई है, और माँ क्या है ये पैगाम अगर कायनात को किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं, हमारे और आपके आका है। आप देखें जिस दौर में माओ को ले जाके बाजारों में बेचा जा रहा था, उस दौर में पैगंबर आजम ने फरमाया था लोगों तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। हुजूर ने फरमाया था सुनो, अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी है तो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर तुम्हारी माँ तुमसे खुश है तो तुमसे तुम्हारा रब खुश है। जरा तवज्जो कर रहे हैं आप, हम पूछते हैं तुम कौन सा दिन मनाते हो, तो लोग कहते हैं कायनात में और इस आलम में और पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम मजदूरों का दिन मनाते हैं, और पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। जरा तवज्जो कर लें आप, और आज के बाद मैं इस मिंबर से कहता हूँ कि जितने दिन भी पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं, आप उनकी बुनियाद को खंगाल के देख लेना। अगर उनका पैगाम सही है और उनकी बुनियाद हक पर है तो उसका पैगाम कायनात में अगर किसी जात ने सबसे पहले दिया है तो वो आमिना के लाल। देखें आप, आज लोग कहते हैं मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। देखिए अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था इसी बात को। हुजूर ने फरमाया था सुनो, मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले तुम उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। आज आपको एक जुमला आम तौर से लिखा हुआ मिल जाता है, आज आप सड़कों के पीछे देख ले, गाड़ियों के पीछे देख ले, स्कूल और कॉलेज में देख ले, एक जुमला आम तौर से लिखा हुआ मिलता है, और वो जुमला क्या है? बेटी
पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया जा रहा है कि बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए। याद रखें, आज दुनिया बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, लेकिन 1450 साल पहले उस दौर में, जिस दौर में बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, पैगंबर आदम ने फरमाया था, सुनो, बेटियों को जमीन में दफन न किया करो, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ इशारा करके फरमाया था, सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है और ये मेरे जिगर का टुकड़ा। अल्लाह सलामत रखे भाई, बोले आमीन। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जरा तवज्जो करें आप, हुजूर ने फरमाया था, सुनो, बेटियों को मनहूस ना समझा करो, ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। हुजूर ने फरमाया था, सुनो, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसके घर में बेटियों की विलादत फरमाता है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, सुनो, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो और उसकी विलादत पर खुशी का इजहार कर दो, तो जब बच्ची पैदा हो और तुम खुशी का इजहार करो तो अल्लाह की तरफ से 70,000 फरिश्ते नाज़िल होते हैं और आने के बाद पैदा होने वाले बच्ची से कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, सुन, जब तक तू अपने बाप के घर में रहेगी, हम भी रहमत बन करके तेरे बाप के घर में मौजूद रहेंगे। देखे आप, आज भी कुछ लोग हैं इस दौर में कि मेरी माँ बहनें बैठी है, भी तवज्जो कर ले, अगर आज घरों में पहली औलाद बेटी हो जाए तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भौएं सिकुड़ जाती हैं। अगर 2-3 औलाद बेटियां हो जाए तो अगर बाप भी घर से बाहर निकलता है तो नजरें झुका करके निकलता है, शर्मिंदा हो करके। ऐसा लगता ही नहीं है कि घर में बेटी पैदा हुई है, लगता है किसी का इंतकाल हो गया है। अगर दादी से भी पूछ लिया जाए कि आखिर घर में क्या आया है, पोता या पोती, तो वो कहती हुई नजर आती है, ख्वाहिश थी पोते की, लेकिन अल्लाह ने भेज है पोती। आज घर में देख लिया जाए तो लोग नजरें झुका करके और भौएं सिकोड़ करके चेहरे बना करके कहते हैं आज घर में बेटी की विलादत हो गई है। और कुछ ऐसे कम अक्ल भी है जिन्होंने बेटियों की विलादत पर, अगर अल्लाह ने उन्हें 2-4 बेटियां दे दी तो बीवियों को मारते भी नजर आते हैं, उन्हें तलाक देते हुए नजर आते हैं। जरा आप तवज्जो करें, अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो इसमें आपकी बीवी का क्या कसूर है? बेटी देने वाली जात अल्लाह की है और बेटा देने वाली जात भी अल्लाह की है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है और जिसे चाहता है बेटा अता करता है। और हुजूर फरमाते हैं, जिससे अल्लाह राजी होता है उसी के घर में औलाद बेटी। तवज्जो करें, अगर घर में बेटियां पैदा हुआ करें, जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो, इतने गोले तमाशे, इतने पटाखे फोड़ दिए जाते हैं कि लगता है कहीं बाहर से हमला कर दिया गया है। लोग सहम कर जाते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, जब तक हर एक फर्द न जान जाए कि आज घर में लड़का पैदा हो गया है, तब तक आप खामोश नहीं बैठते हो। जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो, खानदान में, इलाके में मिठाइयाँ बंटवाते हो, रिश्तेदारियों में मिठाइयाँ तकसीम करते हो, इसी तरह अगर अल्लाह बेटी दे दे तो जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो, उससे कई गुना बढ़ करके बेटी की विलादत पर खुशी का इजहार किया। इसलिए कि बेटियां हर एक के घर में नहीं पैदा होती हैं, बेटियां वही पैदा होती हैं जिस घर को अल्लाह खास कर लेता है, जिस घर को अल्लाह मुंतखब फरमा लेता है। जरा तवज्जो करें, आज कुछ ऐसे लोग भी हैं, मेरी माँ बहनें तवज्जो कर ले, उनके लिए भी एक पैगाम है और नौजवानों के लिए भी एक पैगाम है। अगर अल्लाह बेटी दे दे या 2-3 औलाद बेटी दे दे तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कम अकल के मारे, कुछ ऐसे लोग हैं तो बीवियों को तलाक भी दे देते हैं। जरा तवज्जो करें, ऐसे ही सरफिरा था, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दे दी। कितनी बेटियां? 6 बेटियां दे दी। 7वीं मरतबे जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, हामिला हुई है, तो उसने अपनी बीवी से कहा, सुन, ये तो 7वां बच्चा दुनिया में आने वाला है, अगर ये बेटे की शक्ल में आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 7वीं भी बेटी हो गई तो या तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा या तुझे तलाक दे दूंगा या दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। बीवी थी ने जब शौहर बाहर गया है, उसने जाए नमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज उसने अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथों को उठा करके
اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کہا ہے کہ اگر 7ویں بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ بیٹی کو بھی قتل کر دے گا، مجھے بھی طلاق دے دے گا، اے اللہ اگر میرے نصیب میں بیٹا ہے تب تو تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، اور اگر اللہ 7ویں بھی بیٹی ہے تب بھی تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے، اور اگر اللہ 7ویں اولاد بھی بیٹی ہے تو کچھ ایسا کر دے تاکہ میرے شوہر کو ہدایت مل جائے۔ اور رقیب فرماتے ہیں جب اس کا شوہر رات میں بستر پہ سویا ہے، آنکھ لگی ہے، اس نے خواب دیکھا ہے میدان محشر ہے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، جب اس کی باری آئی ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ تھا، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے چلے ہیں، یہ علماء گواہ ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، جب فرشتے پہلے دروازے پہ لے کے گئے توجہ کریں تو جہنم کے پہلے دروازے پر اس کی پہلی بیٹی کھڑی تھی، دوسرے دروازے پہ لے کے گئے ہیں دوسری بیٹی کھڑی تھی، تیسرے دروازے پہ لے کے گئے ہیں تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے دروازے پہ لے کے گئے ہیں چوتھی بیٹی کھڑی تھی، اسی طرح جب چھٹے دروازے پہ لے کے گئے ہیں اس کی چھٹی بیٹی کھڑی ہے، جب فرشتے 7ویں دروازے پر لے کر گئے ہیں تو 7ویں اس کی اولاد بیٹی نہیں تھی، اس نے بیٹے کی خواہش کی تھی، 7واں جہنم کا دروازہ خالی ہے، فرشتوں نے کہا ہے اسے یہیں سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، جیسے اسے فرشتوں نے اٹھایا ہے اس کی آنکھ کھل گئی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رویا ہے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نادان تھا تو 7ویں اولاد بیٹے کی شکل میں مانگ رہا تھا، اے اللہ اگر میرے نصیب میں 10 اولاد بھی ہیں تو 10 مجھے بیٹیاں عطا کر دے، مجھے بیٹے نہیں چاہیے، اس لیے اللہ بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو باپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اس کی خواہش کرے، بیٹیوں کی خواہش کرے، اگر بیٹی پہلی اولاد ہو گئی تو سمجھ لیں اللہ آپ سے راضی ہے، اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں جس طرح بیٹے کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہو اسی طرح بیٹی کی ولادت پر بھی خوشی کا اظہار کر دیا کرو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آخری بات آپ سن لیں، آخری پیغام دیکھیں، آج جو بھی پیغام دنیا کو دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کائنات میں سب سے پہلے اگر اس کی بنیاد اس کا معاملہ خیر پر ہے اور اس سے جو پیغام مل رہا ہے وہ خیر والا ہے، بہتر ہے، تو اس کا پیغام اور اس کی بنیاد کائنات میں اگر کسی ذات نے سب سے پہلے رکھی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ اب ذرا توجہ کر لیں، کس آقا سے ہم اور آپ پیار کرتے ہیں، کس عظیم الشان نبی سے ہم اور آپ پیار کرتے ہیں۔ آج اگرچہ آپ کو حضور کی زندگی کو پڑھنے کا وقت نہ ہو، حضور کی زندگی کو سننے کا وقت نہ ہو، حضور کی زندگی کو سمجھنے کا وقت نہ ہو، ایسے عظیم آقا کے ہم اور آپ امتی ہیں کہ لوگوں نے اگر حضور کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا ہے، ابھی مکمل پڑھا بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر کے حضور پر ایمان درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی